Assalamu alaikum. Today we will start with new topic of diode circuits. Before I go into detail of today's lecture, let's see what we did before. This is a second part of our course. In the first part, that was physical properties of the semiconductor materials. We discussed what semiconductor materials are, their intrinsic and extrinsic nature, and then we also studied in quite detail the operation of a p-n junction, the most common and simple semiconductor diode. Having discussed those in detail, today we would move on to the circuit element of a diode, a little bit of electronics. Here is a little some outline of the contents which we will be discussing in the two lectures. I have divided my circuit electronic part into two diode circuit elements. So today is the first lecture of on this topic. Here are some references, because even though I had given a list, a comprehensive list of this entire course in the beginning of my lectures, but for these two lectures, for today and the next lecture, here are some references again. If you would like to consult it, they may be helpful to you. As we mentioned so many times before in our lectures, that is the most common and fundamental non-linear circuit is the diode, because current flows only in one direction, which we mentioned so many times earlier is the forward mode or forward biasing of a diode or a semiconductor p-n junction. Just like a resistor, the diode has two terminals. Across these two terminals we connect a bias, that is we apply a voltage, either forward bias or a reverse bias. The only basic difference, or one of the important difference between a resistor and a diode, even though they are both two terminal devices, but the remarkable difference is that when a resistor is operated in the circuit, the current flows linearly across, increases or decreases linearly according to the value of the resistor, but that is not the case for the diode. तो सबसे पहले हम एक fictitious model which is called ideal diode model को स्टडी कर लेते हैं, और फिर उससे जो हमें सर्किट एलिमेंट्स या सर्किट डिज़ाइन समझ आए उसको फिर हम अप्लाई कर लेंगे एक रियल डायोड को, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ द रियल डायोड जिसको आप इस्तेमाल करते हैं लेबॉरेटरी में, लेकिन हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्किट डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स स्टार्ट विद एन आइडियल डायोड मॉडल फर्स्ट, और फिर आइडियल डायोड मॉडल को समझने के बाद उसको हम रियल डायोड्स पे अपने नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे, और बेसिक, जैसे मैंने अभी कहा, बेसिक रियल डायोड इज़ अ सेमीकंडक्टर p-n जंक्शन। डायोड्स की बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं। इस वक्त मैंने सिर्फ दो को हाईलाइट किया है। एक जिसमें आप डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा जिसमें डायोड को आप लाइट इमिटिंग डायोड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इस एलईडी के टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एलईडीज़ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं कि जब आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में होता है किसी फ्री होल जो कि वैलेंस बैंड में होता है रिकम्बाइन करता है, तो डाउनवर्ड ट्रांजिशन में चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री था, अब बाउंड हो गया, तो जो एनर्जी आपके खारिज होगी, निकलेगी, वो बाज़ औक़ात लाइट यानी रेडिएशन फोटोन की फॉर्म में निकलेगी। तो वो प्रिंसिपल हम रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं एलईडी की फैब्रिकेशन में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स हम बनाते हैं डायोड के ऑपरेशन और डिज़ाइन के लिए, कि पहले हम उसका सर्किट डिज़ाइन समझ लेते हैं, फिर उसको किसी एप्लीकेशन में हम उस सर्किट को इस्तेमाल करेंगे, और हम डायोड की मोस्ट सिंपल और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो कि करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टडी करेंगे। एंड देन
हम इस डायोड सर्किट से दूसरे डायोड सर्किट एनालिसिस भी समझ सकते हैं। उसके बाद जब हम एक दफ़ा हमें डायोड को समझने में आसानी हो जाएगी कि उसका सर्किट एलिमेंट कैसे बनाते हैं, उसका डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन कैसे हो सकता है, यानी उसकी एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड ऑपरेशन, इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद यही हम फिर प्रिंसिपल या इस नॉलेज को लेटर ऑन हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर्स और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में फिर इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने सबसे पहले मॉडल से शुरू करती हूँ। शुरू में मैंने बताया कि ये हमने एक लिहाज से एक मॉडल की बात शुरू की है इन द बिगिनिंग ऑफ आवर लेक्चर कि डायोड को हम किन किन तरीक़ों से समझते हैं कि ये ऑपरेट कर सकता है या हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। तो आई विल इन द सीरीज़ ऑफ दीज 2 लेक्चर्स मैंने 4 मॉडल्स टू बिगिन विद यूज़ किए हैं। पहला है आइडियल डायोड मॉडल, दूसरा ऑफ कोर्स यो फेमस एक्सपोनेंशियल मॉडल है, क्योंकि रियल डायोड में हम पहले भी देख चुके हैं पीएन जंक्शंस में कि करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली विद द फॉरवर्ड अप्लाइड बायस और सैचुरेट रहती है रिवर्स बायस मोड में। तो आइडियल डायोड मोड एंड देन द एक्सपोनेंशियल मोड एंड देन द लोड लाइन एनालिसिस एंड फाइनली पीस वाइज लीनियर मॉडल। मैं कोशिश ये करूँगी कि आज के लेक्चर में हम ये चारों मॉडल्स डिस्कस कर सकें। अगर इनमें से रह जाए तो वो अगला लेक्चर भी हमारा इसी सर्किट एनालिसिस पर ही बेस्ड है। और उसमें एक जो कि यहाँ पे इन 4 पॉइंट्स में नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम चारों को इतनी तफसील में आज के लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। वो जो दूसरा इम्पोर्टेंट रह गया है जो यहाँ आपको इस स्लाइड में नज़र नहीं आ रहा, दैट्स वोल्टेज मॉडल, कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हमारा जो मॉडल है दैट्स द आइडियल डायोड मॉडल, द मोस्ट कॉमन ideal diode model. Once again, here is a schematic illustration of a diode, schematic illustration of a diode or a PN junction. I have shown the P side of the material as red and N side material, yeah, N-type doped semiconductor material as in the black box. And similarly, using the circuit symbol terminology in electronics, the arrow head indicates the direction of the flow of current, क्योंकि conventionally हमारी direction अगर हम ये left to right ले रहे हैं तो इसी मुनासबत से मैंने निचले हिस्से में इस स्लाइड के निचले पोर्शन में P को दिखाया है कि current in an external inside the circuit as well as outside the circuit flows in the direction of the arrowhead, जो कि टॉप आपको दिखाया है इस ट्रांसपेरेंसी में, और निचले में पीएन जंक्शन दिखाया है कि पी से एन की तरफ आपकी करंट जब फ्लो करेगी। तो उसी मुनासबत से पीएन जंक्शन तो हमने चूँकि समझा हुआ है, लेकिन आज आइडियल सर्किट, आज सर्किटरी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो मैंने एरोहेड को एनोड कहा है और वर्टिकल लाइन को कैथोड से डेजिग्नेट किया है। अब ये एक डायोड सर्किट एलिमेंट आपको मैंने दिखाया है कि जिसमें 2 मोड ऑफ ऑपरेशन मैंने दिखाई हैं, और साथ ही मैंने आपको दिखाया है राइट हैंड साइड पे फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में आपको दिखाने की कोशिश की है स्कीमेटिकली कि करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस बेतहाशा दफ़ा हमने पहले एक्सप्लेन किया वो मोड ऑफ ऑपरेशन है डायोड की या पीएन जंक्शन की, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द P side of the semiconductor junction, but in this transparency I have only restricted myself to the circuit element or simply a diode. I am not referring to PN junction in this slide. तो डायोड के एरोहेड यानी पॉजिटिव या एनोड को हमने पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया, दैट्स फॉरवर्ड बायसिंग, सिमिलरली रिवर्स बायसिंग। तो कैथोड और एनोड टॉप, कैथोड बॉटम में दिखाया है आपको डायोड के, विच इज़ द फ्लैट लाइन एंड एरोहेड इज़ योर एनोड। तो दोनों मोड ऑफ बायसिंग या ऑपरेशन इस सर्किट एलिमेंट में, डायोड के सर्किट
सर्किट एलिमेंट में आपको दिखाई गई हैं। तो अब तक आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के पे जो बायसिंग है, जो सर्किट है, उसमें करंट नहीं फ्लो कर रही क्योंकि वो रिवर्स बायस है, और फॉरवर्ड बायस में आपके करंट फ्लो कर रही है, जो कि राइट हैंड साइड पे उसका सर्किट एलिमेंट दिखाया है। ये एक और डिफरेंट तरह की डायग्राम मैंने दिखाई है ताकि आपको कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो सर्किटरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। डायोड को अब मैंने उसी तरह दिखाया है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट चल रही है और रिवर्स बायस में अगेन करंट नहीं चल रही। याद रखिए कि आइडियल डायोड सर्किट में तो मैंने आपको कोई रेजिस्टर नहीं दिखाया था इन सीरीज विद द डायोड, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल डायोड्स में, रियल डायोड्स में हम एक रेजिस्टर ज़रूर इंक्लूड करते हैं, वरना आपका डायोड जो है, अगर आपकी ज़्यादा फॉरवर्ड बायसेस अप्लाई हो जाएं तो फिर वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम सर्किट एलिमेंट में इन सीरीज विद द डायोड एक रेजिस्टर भी मैंने इस ट्रांसपेरेंसी में शो किया है। ऊपर के पोर्शन में मैंने आपको एक तरह से दिखाया है सर्किट एलिमेंट, और नीचे के उसमें मैंने दूसरी तरह का दिखाया है। ऑब्वियसली जो चीज़ आप अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने इसमें दिखाया है कि एरो हेड के साथ के करंट की डायरेक्शंस दोनों सूरतों में क्या होगी। जैसा कि हम पहले बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि बेसिक हमारी नोटेशंस ये है कि करंट फ्लोज इन अ डायोड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन अ क्लोज सर्किट एलिमेंट। तो वही चीज़ मैंने नीचे दूसरी तरह से दिखाई है। तो ये अब आपका रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस के बाद ये अब आपका आ गया अगेन करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, यानी पहले हमने बायसिंग को एक्सप्लेन किया सर्किट एलिमेंट की फॉर्म में, स्कीमेटिक सर्किट एलिमेंट की फॉर्म में। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है द आइडियल डायोड मॉडल में वोल्टेज और करंट्स कैसे वेरी करती हैं। तो अगर तो ये एक आइडियल डायोड है तो क्या है कि फॉरवर्ड मोड में जैसे ही आप वोल्टेज को ज़रा सा भी ज़ीरो से बढ़ाते हैं, करंट वुड मूव लीनियरली। तो ये एक नुक्ता है कि करंट राइजेस लीनियरली इन द आइडियल डायोड, और इसी तरह सैचुरेट रहती है करंट रिवर्स बायस में। लेकिन ऑब्वियसली ये बिहेवियर जो आपको यहाँ ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल है कि आइडियल डायोड में ऐसे लगता है या करंट इस तरह की होगी। रियलिटी में जैसे मैं अभी रियल डायोड का यानी पीएन जंक्शन का दिखाऊंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की नहीं होती। फिर मैंने उसी चीज़ को एक और अंदाज में दिखाया है कि आप 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ले लीजिए डिपेंडिंग अपॉन दी सर्किट एलिमेंट और रेजिस्टेंस। तो आपकी अगर सर्किट में कोई मैं रेजिस्टेंस नहीं ले रही आइडियल डायोड में, देन द करंट फ्लोइंग अक्रॉस वुड बी इन्फिनिट एंड वाइस वर्सा। इफ आई यूज or take the resistor to be of infinite value, then the entire voltage that you connect in your diode circuit, the voltage drop would be across the resistor, and hence there would be no current flowing in the circuit, and thus this is the schematic illustration of the 2 extreme cases, having zero resistance across the circuit element and having infinite resistance across the circuit element. So what I have written, if the voltage across anode and cathode is greater than 0, the resistance of an ideal diode is 0 and current becomes infinite. In the second case, if the voltage is less than 0, the resistance become infinite and current is 0. तो ऊपर वाला स्टेटमेंट किसको रेफर कर रहा है? फॉरवर्ड बायस केस को, और नीचे वाला किसको रेफर कर रहा है? रिवर्स बायस जंक्शन को, जैसे कि हमने पिछली 2-3 स्लाइड्स में देखा। तो ये कंडीशन है आपके फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस मोड ऑफ ऑपरेशन की, और दोनों को अगेन उसी तरह मैंने राइट हैंड साइड ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी में दिखाया है। आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज का क्या असर पड़ता है जब हम एक सर्किट एलिमेंट लें। लेफ्ट साइड पे जो आपको दिखाया है कि अब मैंने पर्टिकुलर वैल्यूज़ चूज़ करके आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस सर्किट एलिमेंट को समझने की में आपको मदद मिलेगी। ये मेरा डायोड है
जो कि इस सिचुएशन में आपको फॉरवर्ड बायस नज़र आ रहा है, और जो मेरा वोल्टेज सोर्स है Vs, उसको मैंने 5 वोल्ट का मैग्नीट्यूड लिया है। तो 5 वोल्ट मैंने फॉरवर्ड बायस के लिए रेजिस्टर लगाया इन सीरीज विद द डायोड, जो कि 1 किलो ओम आपका रेजिस्टर है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी जहाँ से करंट आपके बियॉन्ड, यानी 0.7 वोल्ट के बियॉन्ड डायोड वोल्टेज में अगर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप है, तो 0.7 वोल्ट के बियॉन्ड फिर आपकी करंट रियल डायोड में एक्सपोनेंशियली राइज करेगी। इस वोल्टेज को अगले लेक्चर्स में चल के, या इस लेक्चर में भी, हम ये कहते हैं नी वोल्टेज, या voltage at which the diode takes off and current rises exponentially। ये वैल्यू जो है 0.7 वोल्ट की, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है सिलिकॉन के लिए एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हम सोर्स वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज जो कोई 5 वोल्ट है, और नी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी वोल्टेज ड्रॉप एट नी वैल्यू जो कि 0.7 वोल्ट है डायोड के अक्रॉस, इसकी हम अगर ये किरचॉफ सिंपल वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी अक्रॉस द रेजिस्टर लोड भी हम उसको आगे चल के कहेंगे अपने इसी लेक्चर में। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर और द लोड वुड बी नेचुरली द टोटल सम ऑफ द सोर्स वोल्टेज, सिंपल किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेजेस या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्या जवाब आया कि 4.3 वोल्ट्स आपका टेक ऑफ से पहले ड्रॉप होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, और 0.7 वोल्ट आपका ड्रॉप होगा डायोड के अक्रॉस। सिमिलरली द करंट फ्लोइंग इन दी, वी कैन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इन दैट वुड बी 4.3 मिली एम्प। तो डायोड अगर आपका आइडियल, ये तो मैंने बात की रियल सिलिकॉन डायोड की। तो इस टेबल में हमने उन वैल्यूज़ को एक और तरह से दिखाने की कोशिश की है कि अगर मैं आइडियल डायोड मॉडल लूँ, तो डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और आपकी वैल्यू जो है, सोर्स वैल्यू जो है, वो रेजिस्टर के अक्रॉस सारी की सारी अपीयर हो जाएगी। तो आइडियल एंड रियल, जिसको मैंने प्रैक्टिकल यहाँ लिखा है, उन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया है। तो इस वोल्टेज में, इस टेबल में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पहली लाइन है, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दरमियान की लाइन है, और करंट नीचे तीसरी लाइन में दिखाई है। R1 से मुराद है, ये एक वैल्यू मैंने लोड रेजिस्टर की ली। तो 1 किलो ओम के बजाय अगर आप कोई दूसरी वैल्यू ले लें, तो जाहिर है वो फिर मुख्तलिफ आपके जवाब आएंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी लोड एज वेल एज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो R1 सिंपली मीन्स कि अगर 1 किलो ओम का मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में लिया हुआ है, तो उसी चीज़ को अब हम एक और अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या कहा कि करंट फ्लो करेगी अगर फॉरवर्ड बायस डायोड हो या पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करें। इसी तरह करंट ज़ीरो होगी, कोई करंट नहीं होगी अगर डायोड रिवर्स बायस है या पीएन जंक्शन। तो डायोड एक आइडियल आप डायोड ले लें, उसको मैं सर्किट एलिमेंट की टर्मिनोलॉजी में डायोड कह रही हूँ। रियल डायोड्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन से बनते हैं। तो ख्वाह आप डायोड कहें या पीएन जंक्शन रियल डायोड्स में कहें, तो आपके सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम सर्किट एनालिसिस वुड अप्लाई फॉर दिस लेक्चर। तो अभी हमने क्या कहा था उसको हम इस ट्रांसपेरेंसी में सम अप कर लेते हैं कि अगर आप आइडियल डायोड के अक्रॉस, 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, तो 0 वोल्टेज ड्रॉप there would be a 0 voltage drop across the diode. The remaining, the entire source value of the voltage will appear across the resistor, and this type of biasing is known as, this type of a biasing of the ideal diode is termed as forward biasing। और अगर आप इसको एज अ स्विच समझें तो इसको क्या कहेंगे कि जैसे आपका स्विच शॉर्ट हो गया, आपका पाथ कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो होना शुरू हो गई फॉरवर्ड बायस डायोड में। तो फिर आपने क्या कहा, उसी स्टेटमेंट को मैंने नीचे फिर से दोहरा दिया है कि शॉर्ट सर्किट में आपको ऐसे लग रहा है, शॉर्ट सर्किट ऑफ द डायोड में ऐसे लग रहा है जैसे
as if the diode has been turned on or simply on. तो forward bias में फिर तीन चीज़ें फिर से हम दोहराते हैं. When the diode, an ideal diode, is forward bias, this type of a circuit element, the terminology used for this type of a circuit element is the short circuit, and the current is the diode is turned on because the current is flowing or simply on. तो इसको मैं एक और तरीके वही चीज़ हमने रिवर्स बायस के लिए दोहराई कि जैसे सर्किट एलिमेंट जो है वो नाउ ओपन है और चूंकि ओपन हो गया करंट फ्लो नहीं कर रही, तो रिवर्स बायस में हम कहेंगे कि डायोड हैज़ बीन कट ऑफ और सिंपली ऑफ. तो इसी दो स्टेटमेंट्स को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की अब मैंने एक और अंदाज से इस ट्रांसपेरेंसी में कहा है. तो हमें ऐसे लगा कि ऑन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ में ऐसे लगा कि जैसे हम एक स्विच की बात कर रहे हैं कि स्विच को आप ऑन कर दें और स्विच को आप ऑफ कर रहे हैं. तो बायसिंग से डायोड, आइडियल डायोड को बायस करने से हमें ऐसे लग रहा है कि डायोड इज बिहेविंग, इज एक्टिंग एज अ स्विच. तो स्विच की दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होती हैं, या स्विच को आप ऑन करते हैं या स्विच को आप ऑफ करते हैं. ऑफ कोर्स घरों में स्विच अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं और दरमियान में कहीं ढीले होकर दरमियान में यूँ लगता है कि ना वो ऑफ़ हो रहा है ना वो ऑफ़ हो रहा है, दैट्स अ ख़राब स्विच. तो इसी तरह डायोड भी जब मेल फंक्शन करें, लेकिन मैं एक ऐसे डायोड की बात कर रही हूँ जो कि काम कर रहा है और आइडियल है. जाहिर है आइडियल डायोड तो आपके ख़राब नहीं होगा. तो अभी जब मैंने बाइसिंग की मुनासबत से कहा कि जब फॉरवर्ड बाइस करें तो करंट फ्लो करती है, उसको मैंने सर्किट एलिमेंट की टर्मिनोलॉजी में कहा कि टर्न ऑन डायोड या सिंपली ऑन डायोड. तो उसी चीज़ को मैंने दोबारा से लिख दिया है. तो राइट हैंड साइड पे आपके बॉक्स में जो IV कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ की है, ऑन मोड या ऑन स्टेट ऑफ द डायोड है, लेफ्ट पे ऑफ स्टेट या ऑफ मोड ऑफ द डायोड है. तो दो एरोज आपको क्या बता रहे हैं, फिर से वही कि ऑन स्टेट इज द शॉर्ट सर्किट स्टेट ऑफ द डायोड एंड ऑफ स्टेट इज द ओपन सर्किट स्टेट ऑफ द डायोड. अनदर टेबल, अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, क्योंकि जितना एक चीज़ को हम मुख्तलिफ अंदाज से दिखा सकें वो मैंने कोशिश की है कि ये चूँकि एक बेसिस है आगे चल के सर्किट एलिमेंट के ऑपरेशन को समझने का. तो डायोड से, आइडियल डायोड से मैंने शुरू किया है, फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगी रियल डायोड की तरफ और फिर मैं आगे बढ़ूंगी ट्रांजिस्टर की तरफ. तो शुरू में इसीलिए मैंने काफ़ी स्लाइड्स डिवोट की हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि डायोड में करंट कैसे फ्लो करती है और कैसे नहीं करती. तो वही चीज़ें मैंने फिर से जो दो कॉन्सेप्ट्स मैंने शुरू में अभी बताए उन्हीं को मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है कि अगर आप रियल डायोड की, चूँकि आपको आदत है समझने की, तो रियल पीएन जंक्शन में सेमीकंडक्टर डायोड्स में फॉरवर्ड बायस करें तो करंट मिलती है, रिवर्स बायस करें तो करंट नहीं मिलती. उसी चीज़ को इक्विवेलेंट स्विच की फॉर्म में मैंने अभी क्या कहा था, ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ द स्विच. तो जो मैं पहले हाथों से आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी वही हमने अब ड्रॉ करके दिखा दिया कि ऑन स्टेट में आपके करंट फ्लो कर रही है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन. फिर मैंने ऑफ स्टेट दिखाया है कि सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर रही, जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है रिवर्स बाइस की सिचुएशन में. फिर मैंने डिवाइस रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ बताई कि ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट में क्या होंगी. फिर मैंने आपको डिवाइस करंट दी एंड फाइनली नीचे की बॉटम पोर्शन में NO2 कैथोड वोल्टेज भी दिखाई. तो सबसे पहले टॉप पे हमने क्या डिपिक्ट किया कि डायोड को कैसे बायस करते हैं और इक्विवेलेंट स्विच की फॉर्म में उसको कैसे हम ऑन एंड ऑफ तस्वर करते हैं. फिर सर्किट रेजिस्टेंस, सर्किट करंट एंड सर्किट वोल्टेजेस. तो ये पांचों चीज़ें हमने सम अप कर दी इस ट्रांसपेरेंसी में जो मैंने पिछले 7-8 स्लाइड्स में आपको बताया. सो दिस इन फैक्ट इज़ दी, जिसको आप क्या कहते हैं, समरी कह लें या एसेंस कह लें या निचोड़ कह लें उस डिस्कशन का जो कि मैंने अभी पिछले 15 मिनट में की, पिछली 7-8 स्लाइड्स में जो हमने दिखाने की, समझने की कोशिश की. सो आई होप यू अंडरस्टैंड this slide now, and then having shown you this slide I can then move on
to the characteristics of a junction diode. और इस केस में अब मैं दो ही ज़ाहिर है मोड फिर उनको रिपीट कर रही हूँ. द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द जंक्शन, सेमीकंडक्टर जंक्शन, पीएन जंक्शन, जिसमें आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज, जिसको वोल्टेज सोर्स इस लेक्चर में मैंने कहा है, सोर्स वोल्टेज VS, वो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द P साइड, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द N साइड, एंड वाइस वर्सा फॉर द रिवर्स मोड. तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फिर से मैंने वही दिखा दी हैं कि आइडियल डायोड में आपके मोरलेस एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन रियल डायोड में ऐसे नहीं होता. रियल डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग में आपके करंट एक्सपोनेंशियली राइज करती है, और इसी शेप को एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग करंट को आगे चल के मैं एक्सपोनेंशियल मॉडल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द डायोड के नाम से दोबारा की हेडिंग से दोबारा एक्सप्लेन करूँगी. Another slide in a different way कि फॉरवर्ड वोल्टेजेस आप कितनी लगा सकते हैं, किस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की लगा सकते हैं. सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अब मैं यहाँ पे relative to the anode, relative to cathode terminal की बात कर रही हूँ. तो आपको जो मैंने टॉप पे दिखाया है, डायोड की 4 मुख्तलिफ तरीके से बाइसिंग मैंने करके दिखाई है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आप समझ लीजिए या एक चीज़ अप्रिशिएट करें कि इन चारों डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ वोल्टेजेस में फिर भी जो कि मैंने कनेक्ट की हैं एनोड और कैथोड के दरमियान, फिर भी डायोड आपका फॉरवर्ड बायस ही रहेगा. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जब लैब में जाते हैं प्रैक्टिकली, तो वो इस तस्वर को थोड़ा उनको समझने में दिक्कत आती है कि पॉजिटिव से मुराद वो अमूमन ये लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस से मुराद वो अमूमन ये लेते हैं कि आपने हमेशा और हमेशा लाजमी कैथोड को या एन साइड ऑफ अ रियल सेमीकंडक्टर डायोड को हमेशा आपने नेगेटिव करना है या ग्राउंड करना है. ऐसी बात नहीं है. अब आप अच्छी तरह से ये देखिए कि फॉरवर्ड बायस में आप एनी वोल्टेजेस पॉजिटिव टर्मिनल यानी पी साइड को लगा सकते हैं, एनोड को लगा सकते हैं. एनी वोल्टेजेस आप कैथोड को या एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन को लगा सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़हन में रखने की है, समझने की है कि विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड द एनोड मस्ट बी एट अ हायर positive voltage. Similarly, for a PN junction, with respect to the N side of the PN junction, the P side must be relatively at a positive voltage. सिर्फ ये चीज़ मैंने इस ट्रांसपेरेंसी में न्यूमेरिकली दिखाने की कोशिश की है. तो आप देखेंगे मैंने मुख्तलिफ बाइसेस लगाई हैं एनोड को, और क्या मैंने लिखा है कि एनोड मस्ट बी मोर पॉजिटिव देन द कैथोड और लेस नेगेटिव. तो अगर आप नेगेटिव वोल्टेजेस भी लगाएं, देखें इंटरेस्टिंग चीज़ देखें जो मैंने रेड में लिखी हुई है कि अगर आप डायोड को, क्योंकि अमूमन तो हम अब तक के लेक्चर्स में ये कहते आए हैं कि एनोड मस्ट बी पॉजिटिव, पी साइड मस्ट बी पॉजिटिव रिलेटिव टू दी कैथोड और एन साइड ऑफ अ पीएन जंक्शन. फ़र्ज़ करें, अब मैं एक स्टेप और आगे जाती हूँ कि फ़र्ज़ करें हम एनोड को डायोड के नेगेटिव कनेक्ट कर दें, तो फिर किस चीज़ को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं कि फिर उसके मुकाबले में, एनोड के मुकाबले में आपका कैथोड और ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए. तो क्या मैंने लिखा कि योर एनोड मस्ट बी मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव. तो वही आपकी स्टेटमेंट अब मैंने इस्तेमाल की रिवर्स बायस को समझाने में. तो रिवर्स बायस में क्या है कि आप जैसी मर्जी वोल्टेजेस लगाएं, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहन में रखें कि आपका ना हो कैथोड या एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन मस्ट बी मोर पॉजिटिव देन द एनोड, या द एनोड मस्ट बी लेस पॉजिटिव देन द कैथोड और मोर नेगेटिव. तो जिस तरह चाहें आप स्टेटमेंट को समझ लें या लिख लें. That is the simple principle of a forward biasing and reverse biasing. So this slide is a more general statement of a forward biased diode and a reverse biased diode. लेकिन हम अपने आप को ज़्यादा
परेशान नहीं करते। अगली स्लाइड्स में मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं हमेशा एनोड को ऑफ द डायोड को पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाऊंगी और कैथोड को नेगेटिव पोलैरिटी दिखाऊंगी। तो ये वही एक एग्जांपल है जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको दिखाई थी, उसको मैंने दोबारा दिखा दिया, ये कहते हुए, ये बताते हुए कि नहीं, फॉरवर्ड बायस की और रिवर्स बायस की बहुत सी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट नाउ आई एम बैक अगेन टू द सिंपल मोस्ट आइडियल डायोड पोलैरिटी बायसिंग के पॉजिटिव है एनोड और नेगेटिव है कैथोड, और 5 वोल्ट की मैंने सोर्स वोल्टेज ली है, ये वोल्टेज अप्लाई की है, 1 किलो ओम का रेजिस्टर लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली डायोड की पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर दिया। देखिए ज़रा, ये फॉरवर्ड बायस था कि आपका एनोड जो है वो कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मैंने बाकी किसी चीज़ को नहीं चेंज किया, सिर्फ मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी डायोड की, कि अब एरो हेड आपका ऊपर हो गया, पिछली स्लाइड में एरो हेड डाउन था। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, 2 डिफरेंट पोलैरिटीज़ ऑफ एन आइडियल डायोड मैंने शो की हैं। डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैंने फिगर ली है रेफरेंस नंबर 3 में, इसीलिए मैंने शुरू में आपको रेफरेंसेस की लिस्ट दे दी थी कि ये फिगर मैंने सिंपली वहाँ से बोरो करके कॉपी करके आपको दिखाने की कोशिश की है। एक चीज़ देखिए कि जो स्केल्स मैंने यूज़ किए हैं राइट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम में और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम में, राइट हैंड साइड शोज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड लेफ्ट obviously, as you know, is the reverse bias characteristic of a PN junction या IV characteristic of a diode। तो नी वोल्टेज दोबारा दिखाई है which for silicon is about 0.6 और 0.67, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 0.7 लिखा हुआ था, और यहाँ मैंने डेजिग्नेट भी कर दिया है कि ये नी वोल्टेज है। देखिए ज़रा फ़र्क ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ में, कि फॉरवर्ड में करंट्स जो चल रही हैं वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर हैं, और रिवर्स में जो चल रही हैं वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, बहुत हाई करंट कहलाती है रिवर्स बायस में। टिपिकली लेट्स से दे ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर्स। लेकिन साथ ही इसमें मैंने जाके एक टिपिकल ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाई है कि करंट राइजेस वेरी शार्पली एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज, और वो जो है आपका ब्रेकडाउन पॉइंट या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। तो रूम आगे चल के एक और हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। बहुत पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत दफ़ा ये आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने एम्फसाइज किया था, बताया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर वेरी सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करते हैं अपने मटेरियल का, डिवाइस का, उसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि आपके फ्री कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज हो जाएंगे थर्मल जनरेशन की वजह से, और इसी तरह आपके IV करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक पर भी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि रूम टेम्परेचर पर टिपिकली सिलिकॉन की ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिली एम्पियर की करंट्स फ्लो कर रही होती हैं इन टिपिकल डायोड्स। ओके, तो ये दोनों स्केल्स मुख्तलिफ हैं जो कि आपको इस ट्रांसपेरेंसी में दिखाने की कोशिश की गई है कि लेस देन 1 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द डायोड को, और मेनी वोल्ट्स नेगेटिव वोल्टेज यानी रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं। मिली एम्पियर के करीब करंट्स फ्लो करती हैं। फॉरवर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन में माइक्रो और नैनो एम्पियर के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की करंट्स फ्लो करती हैं रिवर्स बायस में। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी क्लियरली इस ट्रांसपेरेंसी में आपको नज़र आ रही हैं। अब मैं मूव ऑन कर जाती हूँ आइडियल डायोड के बाद रियल डायोड्स की तरफ, रियल सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शंस की तरफ, जिसमें के current rises exponentially, and hence the title that now my diode model is the exponential model. In the exponential model, in the forward
मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस जंक्शन, पहले भी हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि करंट जो फ्लो करती है वो किसी सेचुरेशन करंट IS से की निस्बत एक्सपोनेंशियली राइज करती है। तो ये बॉक्स मैथमेटिकल इक्वेशन इन द बॉक्स shows this exponential variation or increase of the forward biased current. I note to remind you once again, to repeat for the nth time, as we say, as they say, is the equilibrium current. Equilibrium current क्या होती है कि even though we have not connected any external source of voltage across the PN junction, मगर किसकी वजह से, because PN junction बजाते खुद एक ऐसी डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है कि P और N की वजह से उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैरियर्स का, फ्री कैरियर्स का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया। सो बिकॉज ऑफ दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, majority holes on the P side, minority holes on the N side, एक होल डिफ्यूजन करंट शुरू होगी, इसी तरह इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट शुरू होगी, और जो नेट एंड फिर ड्रिफ्ट भी हो रही होती है इक्विलिब्रियम में भी। तो टोटल करंट जो आपको मिलती है एक अनबायस्ड जंक्शन में, इक्विलिब्रियम करंट जिसको कहते हैं, और ज़ीरो के सिंबल से इस इक्वेशन में डेजिग्नेट किया है, तो वो तो अपनी जगह थी। अब फॉरवर्ड बायस में जो टोटल करंट आपको मिली वो I नॉट यानी इक्विलिब्रियम की निस्बत एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। ये क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है इस स्लाइड का कि अब करंट एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है। KT इज द थर्मल एनर्जी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि थर्मली द डिवाइस डायोड या PN जंक्शन डिवाइस in both cases are very strongly temperature dependent. Their free carrier concentration as well as their current voltage characteristics, IV characteristics are very sensitive to variation in temperatures. तो डिनोमिनेटर में आपको इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर के KT नज़र आ रहा है। What is KT? Is the thermal energy at some temperature T, और वो टेम्परेचर हमेशा हमने अपने लेक्चर्स में 300 केल्विन लिया है। तो 300 केल्विन पर थर्मल एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ ट्रांसपेरेंसी में मैंने बजाय एनर्जी के वोल्टेज दी है विच इज़ 25 और 26 मिली वोल्ट्स इन दिस केस। दिस इज द थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। अगेन उसी चीज़ को अब हम स्कीमेटिकली डायग्राम में शो कर रहे हैं कि करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली इन द डायोड एंड दिस इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल मॉडल। आप दोनों का कंपैरिजन कीजिए। पिछली स्लाइड्स में हमने क्या कहा था, आइडियल जिसमें करंट लीनियरली राइज करती दिखाई थी, इवन with a slight change in voltage, जैसे ही करंट आपकी स्लाइटली ग्रेटर देन ज़ीरो हुई तो करंट लीनियरली राइज की। यहाँ आपकी एक्सपोनेंशियली दिखाई है, और रिवर्स बायसिंग में तो वो ज़ीरो नहीं थी, ज़ीरो नहीं है, कुछ नेगेटिव वैल्यू है जिसको हमने ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर पिछली स्लाइड में दिखाया। तो having shown you these two exponential, having shown or talked about the exponential model for the diode in these two transparencies, now we can move on to this important point, which is the load line analysis of a diode or circuit element. What is a load line? चलिए इसको थोड़ा सा हम अगली 2-3 स्लाइड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो लोड लाइन को सबसे पहले मैं एक ग्राफिकल एनालिसिस देती हूँ, ग्राफिकल एनालिसिस का देती हूँ। इसमें हम क्या कहते हैं कि आपकी करंट फ्लो कर रही है, एक्सपोनेंशियल मॉडल अभी हमने उसके लिए दिया, और ये करंट एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है। तो ये तो आपकी रियल डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई डायोड में या PN जंक्शन में करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। उसके अलावा निचले पोर्शन में मैंने क्या लिखा है, दूसरी इक्वेशन मैंने क्या लिखी है कि एट द सेम टाइम इन ए कंप्लीट
circuit element of the diode, which we had drawn earlier in many transparencies during the course of this today's lecture, कि आप currents as well as voltages को जो कि आपके circuit diode circuit element में flow कर रही हैं या PN junction में now for that matter flow कर रही हैं, आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ से उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो निचली इक्वेशन को देखिए, जो मैंने वोल्टेज अप्लाई की क्रॉस द डायोड सर्किट एलिमेंट, उसको मैंने डेजिग्नेट किया है सिंबल VSS। द सोर्स वोल्टेज नाउ इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ into two voltages connected in series। एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपके लोड के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस, और दूसरा आपका हो रहा था डायोड के अक्रॉस। तो उसी मुनासबत से द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज RID एंड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज VD। तो दोनों का सम आपका क्या हुआ? टोटल अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, डायोड सर्किट एलिमेंट। ये दोनों करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस लेके अब हम ग्राफिकली एक ड्रॉ करते हैं लोड लाइन, जो मैं आपको जल्दी से दिखा दूं कि इस तरह की लोड लाइन बनेगी। स्केच उसका मैंने दिखा दिया, लेकिन इससे पहले हम क्या कह रहे हैं कि the curve represents the exponential diode equation and the straight line represents the diode equation obtained from the Kirchhoff loop equation. Such a straight line is known as the load line। तो ये definition हुई load line की, और नीचे दो arrows indicate कर रहे हैं definition of Q point। So let me repeat again कि देखिए ज़रा, ये दो equations मैंने ली। एक टॉप वाली इक्वेशन करंट इक्वेशन जैसे आपको नज़र आ रही है, ये आपकी करंट फ्लोइंग इन द PN जंक्शन है, ये रियल डायोड है एक्सपोनेंशियल मॉडल इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि रियल डायोड में करंट हमें मालूम है एक्सपोनेंशियली राइज करती है। दूसरी आपकी वोल्टेज इक्वेशन है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को लेके एक इक्वेशन आपकी कर्व की आ गई, दूसरी जो वोल्टेज इक्वेशन है उससे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेते हुए कि एक दफ़ा वोल्टेज ज़ीरो ले ली और दूसरी दफ़ा करंट ज़ीरो ले ली। तो मेरे पास दो इंटरसेप्ट्स आ गए, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे। उनको मैंने जब ज्वाइन किया तो सो कॉल्ड मेरी लोड लाइन आ गई। इसी चीज़ को अभी मैं अगली स्लाइड में स्केच बना के दिखाऊंगी। तो ये तो हो गया लोड लाइन। सो व्हाट इज़ लोड लाइन? इट इज़ अ लाइन drawn by using the two equations, superimposing the current equation with the voltage equation. That's the concept of load line obtained graphically for a diode, be it the ideal diode, or in this case we are using it ideal diode में तो जाहिर है आपके चूँकि वेरिएशन इस तरह की लीनियर जा रही थी तो वहाँ तो मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन एक्सपोनेंशियल यानी रियल डायोड में इस्तेमाल करेंगे हम, जाहिर है। उसके बाद क्या होता है कि लोड लाइन और रियल डायोड का रियल IV कैरेक्टरिस्टिक का जो इंटरसेप्ट है वो कहलाता है क्वेसेंट Q पॉइंट और क्वेसेंट पॉइंट। और क्वेसेंट पॉइंट और लोड लाइन के जो इंटरसेप्ट आते हैं एक्स एक्सिस वोल्टेज एक्सिस, वाई द करंट एक्सिस, उससे आपको ऑपरेटिंग वैल्यूज़ फॉर अ गिवन डायोड PN जंक्शन मिल जाती हैं। अब ये देखिए, इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत आसान लगेगा लोड लाइन और Q पॉइंट या क्वेसेंट पॉइंट को समझना। ओके, व्हाट डू वी हैव? Again, the figure has been borrowed from the reference which I labeled as reference number 3 earlier in my earlier slide. Right. So here on the left you see a circuit element, a diode circuit element, again in the positive mode, and that's why the current was exponentially rising exponentially in a forward bias junction. I had chosen for this lecture R to be 1 kilo ohm and the source voltage to be 5 volts as indicated earlier. Maybe later on I might show you different values for the source voltage and the load resistance. The direction of the current has been shown, the current flowing in the circuit element, diode circuit element has been shown with the arrow, and the voltage drop across the diode and the
load are also indicated. On the right hand side in the box you would see the Kirchhoff voltage law in the diode circuit loop. So the total voltage VSS is a sum of the voltage drop across the load and the voltage drop across the diode. So here is your mathematical equation. In the bottom I had drawn the straight line by imagining when the voltage is 0 and when the current is 0. So when the current is 0, the entire voltage drop would be across. The entire voltage is appearing as VSS, and when the voltage is 0, then the current is maximum current that you obtain across the circuit. In the circuit is VSS, the applied voltage divided by the load. And the slope of this line is minus, negative slope of this, the slope is negative, calculated as reciprocal of the load value R. Here is another slide of the same thing. The same circuit as I had shown before. On the left, the same circuit again. Now I have shown a slightly different version of the diode element circuit on the left, the same now on the right. I had mentioned the two Kirchhoff laws, the Kirchhoff voltage law on the top and the Kirchhoff current law on the bottom. Now these two characteristics will intersect, and this is the essence of the load line in this current lecture. The third transparency of the same load line concept. So we started off with, let's say, this simple slide कि आपका लेफ्ट पे डायोड सर्किट है, फॉरवर्ड बायस डायोड सर्किट है, जिसमें किरचॉफ लॉ के तहत वोल्टेजेस का ड्रॉप किसके है अक्रॉस, दो सर्किट एलिमेंट हैं, एक लोड है दूसरा डायोड है. तो टोटल वोल्टेज किस में डिवाइड हो रही है, डायोड में और लोड में, और दोनों का सम किसके बराबर होगा, जो आपने वोल्टेज सर्किट के अक्रॉस अप्लाई की. तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं और ये आपका कहलाया लोड लाइन. ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट और रियल एक्चुअल डायोड सर्किट है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, उसी चीज़ को मैंने रिपीट किया है. अब यहाँ पर आपको एक्चुअल मैंने दोनों का भयक प्लॉट करके दिखाई. द ब्लू एक्सपोनेंशियल कर्व इज द रियल डायोड कर्व, रियल डायोड पीएन जंक्शन उसकी बेहतरीन मिसाल है, और लोड लाइन ड्रॉ की है, ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है. तो जहाँ लोड लाइन, द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपको एक्सपोनेंशियल रियल डायोड की आईवी कर्व को, यानी जहाँ ब्लू कर्व डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक की लोड लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हमने ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डायोड कहा, या क्यू पॉइंट कहा, या क्वेसेंट कंडीशन या क्वेसेंट पॉइंट कहा. और इसी तरह हमने कैलकुलेट कर ली वोल्टेजेस की, कि अगर आपकी नीचे देखिए एक्स एक्सिस पर वोल्टेज मैंने प्लॉट की हुई है, तो एक्स एक्सिस पे देखिए कि जब आपकी करंट ज़ीरो हो सर्किट में, तो सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डायोड के अक्रॉस होगी, और देयरफॉर डायोड वोल्टेज वुड बी इक्वल टू द value or magnitude of the applied bias, which is VSS in this example. और पॉइंट ए था ये. अब पॉइंट बी की तरफ आ जाएं, जो कि वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है. इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड ज़ीरो हो गया, तो फिर डायोड करंट जो है वो होगी VSS ओवर R, और स्लोप जो है वो -1 ओवर R है. ये तीनों ट्रांसपेरेंसीज जो अभी मैंने दिखाई, ये इसका रेफरेंस मैंने इंडिकेट किया है, वो उस बुक से ली थी, टेक्स्ट बुक से मैंने ये बोरो की हैं. Another indication of the same load line. अब मैंने यहाँ पर एक मखसूस वैल्यू चूज़ की है. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप कोई भी वैल्यू लोड लाइन लोड रेजिस्टेंस की ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट किलो ओम में वो ज़रूर हो, क्योंकि आप वोल्टेज के अक्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं करना चाहते. तो
1 किलो ओम टिपिकल मैंने वैल्यू चूज़ की है, न्यूमेरिकल वैल्यू चूज़ की है अपने लेक्चर्स में, और अब मैंने 5 वोल्ट के बजाय सोर्स वोल्टेज जो है, अप्लाइड वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट लिए। तो हमने ये वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। तो आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सिलिकॉन की मिसाल मैं लेती हूँ अपने लेक्चर्स में रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन में नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट्स के अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ शो की है, आपको क्वेसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट दिखाया है, और ब्लू लाइन है आपकी रियल एक्सपोनेंशियल वेरिएशन ऑफ द फॉरवर्ड करंट। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने आपको दिखाई हैं इस केस में। तो अब हम इसको एज एन एक्सरसाइज आप घर जाके कीजिएगा कि 3 वैल्यूज़ चूज़ करें, और ये 2 पॉइंट जो मैंने इंडिकेट किए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमने अभी कैलकुलेट की लोड लाइन में, कि आपके अगर आपके करंट ज़ीरो है या वोल्टेज ज़ीरो है तो फिर क्या डिफरेंट वैल्यूज़ आपकी डायोड करंट और डायोड वोल्टेज की आएंगी। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, मसलन 3 मुख्तलिफ वैल्यूज़ इस्तेमाल करके। ये स्लाइड आपको दिखा रही है 2 वोल्ट पे। घर जाके आप इसको रिपीट कीजिए इन कैलकुलेशंस को, ताकि आप कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन अच्छी तरह समझ सकें। एक मैंने इस ट्रांसपेरेंसी में आपको कहा है कि प्लीज़ रिपीट इट फॉर 10 वोल्ट्स एंड लोड लाइन आप 10K बढ़ा दें। जवाब मैंने नीचे दे दिए हैं। आप इसी तरह लोड रेजिस्टेंस को 1 किलो ओम ले लें और अप्लाइड वोल्टेज को 5 वोल्ट ले लें। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में, इन 3 कॉम्बिनेशंस में आप इसको ज़रा सर्किट एनालिसिस को समझने की कोशिश कीजिए बाय न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो इससे आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि डायोड किस तरह सर्किट एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो हैविंग डिस्कस्ड दीज 3 मेन models of the diode circuit element, namely the ideal diode, the exponential model for the diode जो कि real diodes होते हैं, PN junction होते हैं, और तीसरा the load line concept। तो ideal diode, exponential behavior, exponential variation or increase of the diode current, and the concept of the load line and Q point, इन 3 points को let's say हम summarize कर लेते हैं। जो मैंने लिखा हुआ है कि डायोड एज सर्किट एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया, आइडियल डायोड को हमने डिस्कस किया, हमने सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको पता है कि करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक हैं, और हमने एक्चुअल पीएन जंक्शन, एक्चुअल डायोड यानी सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन। तो ये 3 पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिए। एप्लीकेशंस जो कि मैं अगले लेक्चर में शुरू करूँगी वो क्या हैं कि आप डायोड को रेगुलेटर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप रेक्टिफायर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हम इनको एलईडीज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हम फोटोवोल्टेक सेल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और पिछले चंद लेक्चर्स में हमने जेनर डायोड और को एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज के कॉन्सेप्ट में, ब्रेकडाउन के वोल्टेज के कॉन्सेप्ट में मैंने जेनर डायोड का भी जिक्र किया था। तो इस एप्लीकेशंस की लिस्ट में मैंने इवन 2 आज 3 ही पॉइंट दिखाए हैं, लेकिन हम इसको और बढ़ा सकते हैं कि डायोड्स कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, the commonest being the rectifier, which converts an AC signal into a DC signal, and then they can be used as regulators, they can be used as LEDs, they can be used as photovoltaic cells, and so on so forth. Of course इनका most simple and common use जो है वो अपनी जगह बहाल है, और वो क्या है? the current device, the diode as a current device। तो वो तो अपनी जगह है ही। तो अब हम कंक्लूड करते हैं उन 3 पॉइंट्स को जो हमने इस लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किए, एंड आई होप कि आप मैंने अच्छी तरह डिस्कस किए और आपने खूब अच्छी तरह, उससे भी अच्छी तरह समझे। तो वो क्या 3 कॉन्सेप्ट थे कि हमने आइडियल डायोड का सर्किट एलिमेंट समझने की कोशिश की, उसके बाद हमने कैसे आइडियल डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और किस तरह की आइडियल डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती हैं,
उसके बाद फिर हमने एक रियल डायोड को डिस्कस किया, और आपको पता है कि रियल डायोड की मिसाल हम अब तक सिलिकॉन पीएन जंक्शन की लेते आए हैं रूम टेम्परेचर पर। तो फिर हमने रियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक या रियल पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर ली, और हमने देखा कि वो एक्सपोनेंशियली करंट राइज करती है फॉरवर्ड मोड में, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन में, और रिवर्स बाइसिंग में वो सैचुरेट रहती है, और ब्रेकिंग वोल्टेज के बियॉन्ड वो करंट राइजेस वेरी शार्पली। तो ये दो मोड हो गए, आइडियल मोड of the diode operation, the exponential mode, exponential rise in current in real PN junction or real diodes. And finally we discussed the concept of the load line. और इस ट्रांसपेरेंसी में जो इस वक्त आपके सामने है सर्किट एनालिसिस, लोड लाइन एनालिसिस को बड़ी तफसील से दिखाया है। आपका सर्किट एलिमेंट नज़र आ रहा है लेफ्ट पे, नीचे आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ नज़र आ रहा है। इस पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी में एग्जाम्पल में मैंने सोर्स वोल्टेज 2 वोल्ट ली है, और जैसा मैंने पहले कहा लोड रेजिस्टेंस को 1 किलो ओम लिया है। माइंड यू, लोड रेजिस्टेंस आपको ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो ओम लेना है, ताकि आपका डायोड में से बहुत ज़्यादा करंट ना पास कर सके, वरना वो डैमेज हो सकता है। और राइट साइड पर आपको डिटेल्ड स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन है किसकी, दी ब्लू कर्व आपको शो कर रही है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन दी फॉरवर्ड करंट इन ए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, और स्ट्रेट लाइन आपकी लोड लाइन है जो कि हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किरचॉफ वोल्टेज एंड करंट लॉ को यूज़ करके ड्रॉ की है। तो एसेंस इस लोड लाइन एनालिसिस का आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है इन ए ग्राफिकल मैनर। आप प्लीज़ रिपीट कीजिए इस लोड लाइन एनालिसिस को, 2 और एग्जाम्पल्स लेके आप वेरी करें। वोल्टेज को 2 वोल्ट के बजाय 5 वोल्ट ले लें, और फिर तीसरी बार आप इसको रिपीट करें, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी में लिखा हुआ है 10 वोल्ट ले लें, और लोड रेजिस्टेंस को आप 10 किलो ओम ले लें। तो फिर आपको अच्छी तरह से लोड लाइन एनालिसिस को आप और भी अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। इसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट मॉडल हैं, आइडियल डायोड मॉडल एंड एक्सपोनेंशियल मॉडल को डिस्कस करने के बाद 2 और मॉडल्स हैं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस एंड कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल, जो कि मैं आज नहीं बल्कि अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो वो हम ये 2 और मॉडल्स हम पोस्टपोन कर देते हैं अगली उसके लिए, और समराइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या देखा। तो ये लास्ट स्लाइड हमारी समरी है जो आज के लेक्चर में हमने बातचीत की। वो क्या थी कि पहले हमने आइडियल डायोड को डिस्कस किया, फिर हमने करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बोथ फॉर आइडियल एज वेल एज रियल यानी पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड की डिस्कस की, और हमने दूसरे एक्चुअल सर्किट एलिमेंट्स लोड लाइन के फॉर्म में भी ड्रॉ किए। राइट हैंड साइड आपको बता रही है जो कि हम क्या क्या डायोड्स की या रियल पीएन जंक्शंस की, रियल डायोड्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में या सर्किट एलिमेंट्स में। तो वो क्या है? ऑफ कोर्स मोस्ट सिंपल यूज़ ऑफ अ डायोड, रियल डायोड आपको मालूम ही है कि दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ करंट डिवाइस, लेकिन उसके अलावा इनको आप रेक्टिफायर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। रेक्टिफायर्स का क्या मतलब है कि आपका इनपुट सिग्नल जो सोर्स सिग्नल है वो एसी अगर हो तो हम कैसे उससे डीसी आउटपुट ले सकते हैं। दैट्स अ रेक्टिफायर कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट वेयर डायोड इज़ यूज्ड इज़ बिहेविंग एज ए रेक्टिफायर। फिर आपके रेगुलेटर्स के तौर पे भी हम डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लिमिटिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 और इस्तेमाल इम्पॉर्टेंट यूजेस एप्लीकेशंस ऑफ डायोड्स जो मैंने यहाँ लिस्ट नहीं की, दैट्स एलईडीज, द लाइट इमिटिंग डायोड्स। वो मैंने इसलिए नहीं यहाँ लिस्ट किए कि उनको हम अगले लेक्चर्स में ज़रा और तफसील से डिस्कस करेंगे। लाइट इमिटिंग डायोड में वही कॉन्सेप्ट है जो आप पिछले लेक्चर्स में
बहुत दफ़ा हम उसको दोहरा चुके हैं रिकॉम्बिनेशन जनरेशन के लेक्चर में पर्टिकुलरली, कि जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जाता है वैलेंस बैंड में तो रिकम्बाइन होता है, जो आपकी लाइट, जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है अपॉन रिकॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इफ इमिटेड एज फोटॉन्स, तो ये LEDs का कॉन्सेप्ट है। अगर वो विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में है तो LEDs उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एंड ज़ेनर डायोड ऑफ कोर्स, जो हमने ब्रेक डाउन वोल्टेजेस के लेक्चर में पढ़ा था, तो और 2-3 एप्लीकेशंस हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट नहीं की। सो आई डू होप दैट you did get some flavor of diode circuits and electronics and design, which will help you later on in your course as we go along in understanding the current voltage analysis of transistors, having completed the PN junction or diode part. So I would look forward to seeing you again in my next lecture, and I also hope that you do understand whatever we are talking about in a series of this course. Thank you so much for attending this class. Khuda Hafiz.